Namaskar or good evening to everyone. In this lecture, I'm going to discuss an interesting topic of the Indian polity. It is conflict between fundamental rights and directive principles of the state policy. हमने अब तक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो जान लिया है. Fundamental rights aims to protect the individual freedom and liberty, while the DPSP or the directive principles are some direction or the ideals which the state or the government must keep in mind during the policy formation and law-making process. Second जो difference है वो ये है the fundamental rights are justiciable in nature. It means if there is the violation of these rights, they can be enforced by the courts. यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है तो उस व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है वो किसी भी कोर्ट में, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जाकर वो उनको इम्प्लीमेंट करवा सकता है, उनको इन्फोर्स करवा सकता है. बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स are non-justiciable in nature. They cannot be enforced or implemented by the courts. अब इन दोनों के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस वक्त से स्टार्ट होता है जब हमारा संविधान का कमेंसमेंट होता है. आज मैं यहाँ पर कुछ केस लॉज और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उन केस में क्या क्या आई उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी. The first is the Champakam Dorairajun case of 1951. 1951 का ये केस है. The Supreme Court ruled that if there is conflict between fundamental rights and directive principles, the former would prevail or the fundamental right would prevail. यानी कि अगर दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी. बट द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट कर सकती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब देखिए इसका आउटकम क्या होता है. आवर पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964. अब सेकंड केस पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. ये 1967 का केस है. एंड द नेम ऑफ द केस इज द गोलकनाथ केस ऑफ 1967. इन दिस केस आवर कोर्ट हैड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स. It means the fundamental rights cannot be amended for the implementation of the directive principles. कि उनको जो है पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं कि वो अमेंड करे किसी भी फंडामेंटल राइट को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. बट आवर पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एंड इट इनेक्टेड 24th Amendment Act of 1971 and 25th Amendment Act of 1971. तो यहाँ पर मैं 25th Amendment Act की बात करूँगी. Under this amendment, a new article was inserted in the Constitution. It was Article 31C, which has two provisions. The first provision says that
No law, no law which seeks to implement socialistic dialectic principles specified in the Article 39B and A shall be void on the ground that it violates the Article 14, Article 19 and Article 31. And it had second provision which जो कि एक इस बारे में बात करता है कि जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। किसका नहीं कर सकता है? कुछ एक ऐसे लॉज जो कि पॉलिसी को जो है आपका इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए, उनका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। बट इन केशवानंद भारती केस 1973, it was declared by the Supreme Court that the second provision of the Article C was unconstitutional and it was declared invalid because court said that the judicial review is the basic feature of the Indian Constitution, so it cannot be taken away or it cannot be taken away from the court कि कोर्ट का एक पावर है कि किसी भी लॉ का वो जो है एक जुडिशियल रिव्यू कर पाए। नाउ in 1976 when our government erected the 42nd Amendment Act of 1976. This Amendment Act extended the scope of first provision of Article 31C by including all the laws to be protected, not only all those laws which are relating to the Article 39B and C. तो यहाँ पर जो DPSP है उनको एक प्राइमेसी दी गई कि जितने भी जो DPSP है उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। But in Minerva Mills case of 1980, this provision was declared as the unconstitutional and invalid. अब फिर से जो DPSP थे उनको जो है फिर से जो है सबॉर्डिनेट कर दिया फंडामेंटल राइट्स के। बट जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल जो 19 है उनको सबॉर्डिनेट कर दिया DPSP के। इवन आर्टिकल 31 इट वाज आल्सो एबोलिश्ड। जो मिनर्वा मिल केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो DPSP है और फंडामेंटल राइट्स है दोनों जो है एक रथ के दो पहिए हैं और दोनों के मध्य एक हार्मनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दोनों जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है भारत के संविधान के। इनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक इम्पोर्टेंट है और दूसरा उससे कम इम्पोर्टेंट है और हम जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है ज़्यादा सुपीरियर नहीं बना सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल से और ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स से हम जो है ज़्यादा सुपीरियर बना सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य एक बैलेंस होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो in present time the fundamental rights enjoy the superiority or the primacy over the directive principles, but they can be amended for the implementation of the directive principles. उनका जो अमेंडमेंट किया जा सकता है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है अमेंड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि या फिर वो इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर है वो डिस्ट्रॉय हो। तो आज हमने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर बात की। इसमें मैंने 4 केसेस की बात की, जैसे चंपक अब्दुल राजनवाला केस जो 1951 का है, उसके बाद गोलकनाथ का जो केस है 1967 का केस है। वहाँ पर जो अलग अलग जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया था
और उसके बाद जो मैंने बात की केशवानंद भारती का केस और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आता है, और इसके अतिरिक्त जो अंत में मैंने बात की मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन लास्ट I talked about the present situation of the fundamental rights and the directive principles of the state policy. तो मेरा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।